Hello students, I am Manisha and today we are going to read chapter first of history. The First War of Independence 1857 Causes and Consequences. पहला युद्ध स्वतंत्रता के लिए कब लड़ा गया? 1857 में. इसके क्या कॉजेस कारण रहे और इसके क्या परिणाम रहे? बिफोर रीडिंग चैप्टर 2, students, let us see a small film on the war of 1857. In this scene, we can see how East India Company come to India for trade and in 1772 established in India as a political power. Its main motto to get benefit from Indian territories. To fulfill their motto, they applied unjust policies on Indians. The rulers, the peasants, jamindars, sepoy, artisans, pandits, maulvis were badly affected by their policies. The company policies like subsidiary alliance, and the doctrine of lapse caused dissatisfaction among the Indian rulers. The religious beliefs of sepoy were also hurt by Britishers by passing Enlistment Act in 1856. The main cause of the war was the cartridge of the Enfield rifle. It is believed that it was made up of fat of pig and cows. This hurt the feeling of Hindu and Muslim sepoy. On March 29, 1857, at Barakpur, sepoy refused to use the cartridge. They were forced to do that. A young sepoy, Mangal Pandey, attacked his officers. After that, he shot himself so that the Britishers could not catch him, but he survived and was hanged till death by the Britishers. After it, 85 sepoy of Mangal Pandey's regiment marched towards Delhi. Reaching there, they declared Bahadur Shah Jafar as their ruler. Then, is this way, the revolt against the British started in India. At Delhi, Bahadur Shah Jafar. Kanpur, Nana Sahib. Tatya Tope. Begum Hazrat Mahal from Lucknow. Kunwar Singh from Araha. And Rani Lakshmibai from Jhansi led the revolt. The Britishers suppressed the revolt and captured Delhi on 20th September 1857.
and killed two sons of Bahadur Shah Jafar before him and sent him to Rangoon and imprisoned him there. By and by, all the revolutionaries were killed brutally. To cherish the revolt, the Britishers in this way recaptured India in 1859. Hello students, I am Manisha and today I am going to explain chapter 1st of history and the topic is the First War of Independence 1857 Causes and Consequences. फर्स्ट वॉर पहला युद्ध ऑफ इंडिपेंडेंस पहली लड़ाई किसकी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की फ्रीडम 1857 ईयर कौन सा है इन विच ईयर 1857 कॉजेस क्या कारण थे एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम रहे पहली लड़ाई के आजादी की जो पहली लड़ाई थी उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर let us talk about why and when did the East India Company come to India. East India Company came into India in 1608 AD just for business purpose in the reign of Jahangir. But very soon the people in the company found out that the people in India were not united at all. They were the Brahmans. They were Kshatriya, Vaishya and Shudra. They used to eat, drink and be merry. They were the rulers of their own territory, own state, own kingdom. But they were not the rulers of the country. They were not Indians. They had the least interest in affairs of India. The English took this situation as an opportunity and started dominating the country. Firstly, it was not noticed, but when it became an excess, it tortured. People like Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Tatya Tope and many others started opposing these foreigners. These English had come to India like a man who comes to hire a room. And then, after some time, this man or rent starts thinking to capture the house. These businessmen of spices started conspiracy against the country. This phase of Indian history is known as the First War of Independence. Now come to the chapter. India attained independence from British rule in 1947. भारत ने आजादी प्राप्त कर ली किससे अंग्रेजों से किस सन में 1947 में But the popular struggle that led to the independence has been a long drawn process. लेकिन जो हमें आजादी मिली वो ऐसे ही नहीं मिल गई वो क्या थी long drawn process एक लंबी लड़ाई के बाद लंबी लड़ाई की प्रक्रिया के बाद process प्रक्रिया के बाद The revolt of 1857 widely regarded as the beginning of the country's struggle for independence. जो 1857 की क्रांति थी वो मुख्य रूप से व्यापक रूप से शुरुआत मानी जाती थी देश की लड़ाई की देश की कौन सा स्ट्रगल आजादी के लिए देश की लड़ाई की शुरुआत मानी जाती थी इसने रास्ता निकाला पाथ ब्रेकिंग माने रास्ता निकाला किसका रास्ता निकाला इवेंट्स जो घटनाएं घट रही थी उन्होंने रास्ता निकाला किसका रास्ता निकाला दिस प्रोसेस आज़ादी हमें कैसे प्राप्त होगी लगातार जो घटनाएं घट रही थी इस समय उन लोगों ने ये रास्ता बताया कि हमें आज़ादी किस तरीके से प्राप्त होगी बिटवीन 1757 और 1857 में नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स बहुत सारी क्रांतियां हुई कहाँ हुई थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उप महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप में किसके खिलाफ हुई फॉरेन डोमिनेशन जो विदेशियों का आधिपत्य था जो अधिकार था उनके खिलाफ लड़ाइयां शुरू हो गई कुछ भी हो द रिवॉल्ट ऑफ द सिपाही जो सिपाहियों की लड़ाई थी जो आंदोलन था कहाँ पर मेरठ में
10 मई 1857 को सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण था। क्यों? अनलाइक अर्लियर, जो पहले घटनाएं हो चुकी थी, जो क्रांतियां हो चुकी थी, डिड नॉट रिमेन एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये घटना दूसरी घटनाओं से, ये जो घटना घटित हो रही थी, ये दूसरी घटनाओं से आइसोलेटेड मीन्स अलग नहीं थी। ये जो घटना हो रही थी ये दूसरी घटनाओं से अलग नहीं थी। एज द रिवॉर्ड, जैसे जैसे इस आंदोलन में प्रगति होती गई, तरक्की होती गई, सिपाहियों का असंतोष बढ़ता गया और जो शासन व्यवस्था थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, उसके हाथ से बागडोर निकल गई और कहाँ पहुंच गई? क्वीन एलिजाबेथ के हाथों में। कहाँ पर पहुंच गई? क्वीन एलिजाबेथ के हाथों में। द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चली गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू हिज ओन हैंड्स। ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो इस घटना की अनदेखी करते हैं। कौन सी घटना? जो सिविल और नेशनल एस्पेक्ट ऑफ रिवॉल्ट की हुई थी। जो सिपाहियों का असंतोष था, जो सिपाही जिस बात से असंतुष्ट थे, उस घटना को वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस घटना को इंटरकनेक्शन माने जोड़ के देखते हैं। किसके रूप में? मिलिट्री और सिविल एस्पेक्ट के रूप में। और इस घटना को रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस के रूप में मान्यता देते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, मेन इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुख्य कौन सी घटना है पहले स्वाधीनता लड़ाई की? सबसे पहले जो घटना है वो कौन सी घटना थी जिससे इसकी शुरुआत हुई? एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था आर्मी में। सेना में एक नई राइफल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज पड़ती थी, जो गोलियां पड़ती थी, वो कैसी होती थी? वो उस गोलियों के ऊपर जो कवर होता था उस पर ग्रीस लगी होती थी। फर्स्ट वॉर में सबसे पहली जो घटना हुई वो थी एनफील्ड राइफल की। और एनफील्ड राइफल में जो बंदूक में जो गोलियां पड़ती थी उनके ऊपर एक पेपर का कवर होता था। और ऐसा माना जाता था, ये रूमर फैलाया गया था कि जो ग्रीस होती थी वो किससे बनी होती थी? फैट से, चर्बी से बनी हुई होती थी। इस चर्बी से क्या होता था? ये माना, रूमर फैलाया कि ये सूअर की चर्बी है। और सूअर की चर्बी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, जिससे कि बंदूक की जो गोली होती है वो लोहे की बनी होती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट रस्ट, वी कैन यूज ऑयल और ग्रीस। और ये जो ग्रीस थी, ग्रीस पेपर था, ऐसा रूमर फैला दिया कि ये फैट का बना हुआ है। अब जब यूज्ड इस राइफल के अंदर जब हम कार्ट्रिज को डालते थे, लोडिंग द कार्ट्रिज, द सोल्जर्स, जो सिपाही थे, उन्हें उस कागज को दांत से फाड़ना पड़ता था। कुछ चॉकलेट हम खाते हैं, चॉकलेट का जो रैपर होता है उसे हम दांत से फाड़ते हैं। अगर हमें पता चले कि वो फैट का बना हुआ है या किसमें कोई सूअर की या गाय की चर्बी मिली हुई है, तो क्या हम उसे अपने दांत से फाड़ेंगे? इससे क्या होता है? जो भावनाएं होती हैं हिंदुओं की और मुसलमानों की, वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आहत होती हैं। तो ऐसा माना गया कि जब इसको हम अपने दांत में लगाएंगे तो जो हिंदू लोग हैं वो खाने में विश्वास नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं। और सूअर या गाय की चर्बी, जिससे कि ये फैट बनाया गया था, जब इसको वो अपने दांत में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अपने आप को अपवित्र मानेंगे। तो वही पहला कारण था इस वार का कि जो गोलियां थी उनके ऊपर जो कवर था, बुलेट के ऊपर जो कवर था, उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई थी। और ये रूमर फैला दिया कि ये जो ग्रीस है ये फैट की है, चर्बी की बनी हुई है। और जब भी इसको हम अपनी बंदूक में गोली को डालेंगे तो उसको हमें अपने दांतों से काटना पड़ेगा। और दांतों से फाड़ने के कारण हमारे मुंह में वो फैट लग जाएगा, जिससे कि जो हमारे धर्म के विरुद्ध है और हम अपवित्र हो जाएंगे। अब सिपाहियों का ये मानना था कि ये जो गोली है, कार्ट्रिज है, इसको जानबूझ करके ग्रीस लगाया गया है जानवरों की चर्बी से, ताकि जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट हैं, वो हर्ट हो जाएं। इट वॉज अ टैबू फॉर हिंदूज। ये हिंदुओं के लिए एक टैबू होता है, जो वो प्रतीक का जो चिन्ह होता है। बाइट द फैट ऑफ द काउ एंड फॉर मुस्लिम टू बाइट द फैट ऑफ अ पिग।
हिंदू कभी भी गाय की चर्बी को हाथ नहीं लगाएगा और ऐसे ही मुसलमानों के साथ में इससे भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए हिंदू और जो मुसलमान सिपाही थे उन्होंने इन कार्ट्रिज का यूज करने से मना कर दिया। When it was made mandatory, और मैंडेटरी जब ये जरूरी हो गया कि इन कार्ट्रिज का आपको यूज करना ही है, द इंडियन सोल्जर्स वर इंसेंस्ड। भारतीय सिपाही इंसेंस्ड, खिसिया जाना, चिढ़ गए इस बात से कि जबरदस्ती उनसे कार्ट्रिज का यूज करवाया जा रहा है। जो ट्रबल, सबसे ज्यादा जो परेशानी शुरू हुई वो कहाँ हुई? बैरकपुर में, जहां पर बहुत सारे भारतीय सिपाहियों ने इस ग्रीस कार्ट्रिज को रिफ्यूज कर दिया, यूज करने से मना कर दिया। एक ब्राह्मण सिपाही जो 34 इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल सेना है बैरकपुर की, जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इसमें क्या किया उन्होंने? अटैक द एडजुटेंट, उसने अपने अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया। और जो उसका ये एक्शन था उससे जो दूसरे सिपाही थे उनमें डर बैठ गया। उनके माइंड में ये आया, उनके दिमाग में ये आया कि इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने से वास्तव में उनके जाति की और धर्म की हानि होगी। मंगल पांडे को कैसे भी हो अरेस्ट कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। उसके जो फेलो सिपाही थे, उसके जो साथी थे, जो सिपाही थे, वो उनकी नजरों में एक क्रिमिनल ना होकर के एक शहीद के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसने अपना जो जीवन है, मंगल पांडे ने अपनी लाइफ का सेक कर दिया, बलिदान कर दिया। किसके लिए? धर्म के लिए। और 1 महीने के अंदर इस घटना ने अन्य जगहों पर क्रांतियों की शुरुआत कर दी। अन्य जगह कहाँ कहाँ क्रांतियां हो गई? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, ये वो जगह हैं जहाँ पर मंगल पांडे की डेथ के बाद में क्रांति की शुरुआत हो गई। मंगल पांडे की डेथ क्यों हुई? क्योंकि इसने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया और इसके बाद इसने जो इसका एडजुटेंट है, उच्च अधिकारी है, उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद में इसे गिरफ्तार किया गया और फिर हैंग कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट्स एट मेरठ। 8 मई 1857 को जो नई कार्ट्रिज आई थी वर यूज्ड टू द इंडियन सिपाही, भारतीय सिपाहियों को यूज करने के लिए दी गई। 85 ऑफ देम, उनमें से 85 ने मना कर दिया। बाइट ऑफ, उसे फाड़ करके यूज करने से मना कर दिया। बाइट ऑफ माने दांत से काटना। दे वर डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल दिया गया। सेंटेंस टू 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दे वर डिसग्रेस्ड, बदनाम किया गया उन्हें। उनकी वर्दी को छीन लिया गया। किसके सामने? इन द प्रेजेंस ऑफ, जो पूरी भारतीय टुकड़ी थी, जिस सेना में भारत के सिपाही थे, उन भारतीय सैनिकों के सामने उनकी जो वर्दी थी उसको उतरवा दिया गया। 10 मई 1857 को इंडिया के जो सिपाही थे उन्होंने ओपन वॉर माने खुली लड़ाई छेड़ दी। कहाँ पर? मेरठ में। किल्ड द ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स को किल्ड, मार दिया। जेल के ऊपर हमला कर दिया और जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उन्हें आजाद करा दिया। इसी दिन, ऑन द सेम डे, इसी दिन इन सिपाहियों ने हजारों सिविलियंस, वो होते हैं जो सेना में नहीं होते, सामान्य नागरिक, मार्च टू दिल्ली के लिए मार्च करा। इवेंट्स एट दिल्ली की घटना है। जब क्रांति दिल्ली तक पहुंची, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश, वहां पर क्रांतिकारियों ने हजारों की संख्या में अंग्रेज सिपाहियों को क्या करा? किल्ड, मार दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। कैप्चर्ड द सिटी। उन्होंने घोषणा कर दी मुगल एम्परर बहादुर शाह की। बहादुर शाह को क्या बना दिया? रूलर ऑफ इंडिया, भारत का शासक बहादुर शाह को प्रोक्लेम्ड, घोषित कर दिया। विद्रोही सिपाहियों फ्रॉम द अदर स्टेशन, जो विद्रोही सिपाही थे अलग अलग स्टेशन माने दूसरे राज्यों के, उन सब ने दिल्ली में डेरा डाल लिया। लॉस ऑफ दिल्ली लोअर द, अंग्रेजों की जो प्रेस्टीज थी दिल्ली में वो लोअर्ड, घट गई। तो अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए, कोई भी रिस्क लेने के लिए अंग्रेज तैयार हो गए। सर जॉन निकलसन ने एक क्या किया? हेल्प ली, मदद ली। किसकी? लॉयल सिख सोल्जर्स। लॉयल माने जो उनके लॉयल थे, उनके अनुयायी थे।
सिख सोल्जर्स, जो सिख सिपाही थे पंजाब के, उन्होंने क्या करा, दिल्ली को घेर लिया। सर जॉन निकलसन ने पंजाबी सिख लोगों के, जो सिख सिपाही थे, उनकी मदद से दिल्ली को घेर लिया। 4 महीने की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को सफलता मिल गई दिल्ली को रिकैप्चर, दोबारा से हासिल करने की। बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह, उसको जेल में डाल दिया गया। किसके साथ में? उसके दोनों लड़कों के साथ में। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था विद्रोही सिपाहियों की मदद करने के लिए। सजा क्या मिली उसको? पूरी उम्र के लिए इम्प्रिजनमेंट, जेल डाल दिया गया। एंड डिपोर्टेड माने निकाल दिया गया टू रंगून, दिल्ली से निकाल के उसे रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पूरी जिंदगी लिए आजीवन कारावास दिया गया। जब तक कि वो मर ना जाए तब तक जेल में रखा गया और उसे दिल्ली से बाहर रंगून भेज दिया गया, जहां वो 1862 में डाइड, मर गया। उसके दोनों लड़कों को उसके सामने गोली मार दी गई। इस तरीके से पराक्रमी मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगलों का आखिरी बादशाह कौन था? ये देखिए इस फोटो में, बहादुर शाह जफर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट्स एट कानपुर। कानपुर की घटना। कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसका नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए लड़के थे। वो एक बहादुर और दृढ़ निश्चयी जनरल थे। नाना साहेब ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और वहां से ब्रिटिश लोगों को भगा दिया और अपने आप को कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। ये देखिए फोटो में, ये नाना साहेब हैं और ये कानपुर से लड़ाई लड़ रहे थे स्वाधीनता की। वहाँ पर जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने कानपुर से अंग्रेजों को भगा दिया और अपने आप को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया। बड़ी मात्रा में इन्होंने अंग्रेज आदमी, औरत और बच्चों को कैप्चर्ड कर लिया, पकड़ लिया और नाना साहब ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद तक पहुँचा देंगे। जब वो लोग नाव में बैठ करके गंगा नदी को पार कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गईं। किसके द्वारा? एंग्री मॉब, गुस्सा हुई भीड़ के द्वारा। मॉब माने भीड़। केवल कुछ बच्चे और औरतें ही उस भीड़ का शिकार होने से बच गए। 17 जून 1857 को जनरल हैवलॉक ने कैप्चर्ड कानपुर पर कब्जा कर लिया और किसको हरा दिया? नाना साहेब को। नाना साहेब वहां से नेपाल भाग गए और उसके बाद उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया। कानपुर, द सिटी ऑफ कानपुर वॉज देन टेकन। इसके बाद कानपुर पर तात्या टोपे, जो कमांडर थे नाना साहेब की सेना के, सेनापति थे, उनका कब्जा हो गया। बट फाइनली, लेकिन लास्ट में ब्रिटिश लोगों ने तात्या टोपे को हरा दिया और शहर पर दोबारा से कब्जा कर लिया। इवेंट्स एट लखनऊ। लखनऊ की घटना। लखनऊ क्या था? कैपिटल सिटी ऑफ अवध, जहां पर रिवॉल्ट का संचालन, जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व कर रही थी बेगम। अवध की जो बेगम थी वो अवध में स्वाधीनता की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। जो लड़ाई थी फायर सी, बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी थी। भयानक इसलिए हो चुकी थी क्योंकि जो कॉमन व्यक्ति थे, साधारण आदमी थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे और वो अंग्रेज फोर्स पर आक्रमण कर रहे थे। और ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने रिफ्यूज, शरण ले ली थी रेसिडेंसी में, विच वॉज बिसाइज्ड एंड, जिसको कि घेर लिया गया था चारों तरफ से 5 महीने तक के लिए। अंग्रेज लोग डर के मारे कहाँ भाग गए थे? रेसिडेंसी में। रिफ्यूज माने शरण लेना। रेसिडेंसी में उन्होंने शरण ले ली थी और वहां पर 5 महीने तक उस रेसिडेंसी को घेर लिया गया था। और घेरा किसने था? अवध की महारानी और उनके सैनिकों ने। सर हेनरी लॉरेंस वहां पर मारे गए और बहुत सारे अंग्रेज सिपाही भी मारे गए। एट लास्ट, आखिर में सर कॉलिन कॉम्पबेल वहां पर ज्यादा सिपाहियों के साथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर भारतीय सिपाहियों को हरा दिया और लखनऊ पर दोबारा से कब्जा कर लिया 1858 में।
एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट्स इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की घटनाएं। सेंट्रल इंडिया में जो भारतीय सिपाही थे उनके दो बड़े बड़े नेता थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सिपाही ऑफ तात्या टोपे के सिपाही और उनके अपने सिपाही यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के सिपाही और तात्या टोपे के सिपाहियों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया, क्रांतिकारियों के द्वारा प्रोक्लेम्ड घोषित कर दिया गया। और क्रांतिकारी कहाँ के थे? सेंट्रल इंडिया के। महाराजा जयसिंह राव सिंधिया जिनके की द्वारा ग्वालियर को छीन लिया गया था, जिनसे ग्वालियर को छीन लिया गया था, वो लॉयल थे किसके? ब्रिटिश लोगों के। ही फ्लेड, वो वहां से भाग गए और अंग्रेजों की शरण में चले गए। अंग्रेजों की शरण में कहाँ गए? आगरा में। सर ह्यूज रोज एडवांस टूवर्ड्स ग्वालियर, सर ह्यूज रोज कहाँ गए? ग्वालियर की तरफ, और डिफीट कर दिया इंडियन ट्रूप्स को। भारतीयों की टुकड़ी जो थी रानी लक्ष्मीबाई की, उसको हरा दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने गार्ब मीन्स होता है कपड़े पहनना, डॉनिंग मीन्स धारण करना ऑफ ए वॉरियर, एक योद्धा के कपड़े धारण कर लिए। एक वीर सिपाही की भांति उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने आफ्टर पुटिंग, कब हुई? काफी कठिन लड़ाई के बाद। रानी लक्ष्मीबाई एक योद्धा के रूप में गई और वो एक बहादुर सिपाही की तरह से लड़ी और उनकी मृत्यु हुई जब उन्होंने एक टफ फाइट दी अंग्रेजों को। तात्या टोपे भागने में सफल हो गए। इन 1859 ही वॉज बिट्रेड, उन्हें धोखा दिया गया बाय हिज ओन मैन, उनके अपने आदमियों के द्वारा, और वो अंग्रेजों के हाथ लग गए। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही कठिन टक्कर दी थी। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो तोप के गोले के द्वारा हुई और अंग्रेजों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि हमने इन्हें फांसी दी है, ताकि जो दूसरे सिपाही हैं जो लड़ रहे हैं वो ये जान जाएं कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें आक्रमण नहीं करना है। लड़ाई दूसरी जगह पर भी फैली, बिहार में इसे नेतृत्व मिला कुंवर सिंह का, जो एक जमींदार थे जगदीशपुरा के, जिन्होंने हु फॉट द ब्रिटिश, अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने नाना साहेब की फोर्स को भी ज्वाइन किया और अवध और सेंट्रल इंडिया में लड़ाइयाँ लड़ी। फैजाबाद में जो रिवॉल्ट हुआ, जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जो मद्रास के रहने वाले थे। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम जो समाज था, उसमें भावनाएं जागृत की, देशभक्ति की और उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया या बताया। फाइनली बाद में उन्हें लास्ट में उन्हें पकड़ लिया गया और अंग्रेजों के द्वारा उनकी डेथ, पुट टू डेथ, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया या उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। Military cause, first Indian sepoys were treated badly. They were regarded inferior to the British counterparts. In other words, Indian sepoys were regarded secondary in comparison to the British sepoys. They were given the less salary. English sepoys were given high salaries and Indian soldiers given less salaries. In 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh. To the companies caused a resentment. When the British were defeated in the first war of Afghan, the Indians think that the British could be defeated. General Enlistment Act also a major reason to create a feeling against the Englishmen. General Enlistment Act. According to this act, Indian soldiers were sent to overseas, जिसमें भारतीय सिपाहियों को समुद्र के पार सर्विस के लिए भेजा जाता था। और पुरानी मान्यता है कि समुद्र पार करना ब्राह्मणों के लिए धर्म के विरुद्ध है। इस एक्ट के द्वारा ये एक मिलिट्री कॉज था वॉर का। एंड द लास्ट इज नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स वर लेस देन दैट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। जो अंग्रेज सिपाही थे वो संख्या में कम थे भारतीय सिपाहियों के। Now the second cause is social causes. In this cause,
The British openly started interfering in the tradition, custom of the Indians without caring for the emotions of the people. Ban on sati system and widow remarriage were the example of it. British forced converting the Hindus and the Muslims into Christians. English medium schools were opened. Western education was not liked at all. Indian people were doubtful of the modern innovative changes in society. Now, third and last point, economic causes. The British started exploiting Indian resources. They purchased spices, indigo, food grains and sold at high cost. They did not nothing for the development of Indian industry. Rather, they were responsible for declining it. They purchased raw, eaten and food from India at cheaper rate and manufactures good and sold it at a great profit. Drain of wealth, that is the transfer of wealth from India to England, was also started. Due to English policies, Indians became unemployed. Even educated Indians were jobless. Poverty, famine and capitalization of Jagirs caused resentment among the Indians. Now the next point is political cause. राजनीतिक क्या कारण थे? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, राज्यों को हड़पने की नीति. पॉलिसी मीन्स नीति, एनेक्सेशन हड़पना, किस तरीके से हम किसी दूसरे के राज्य को हड़प लें. द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन by following unfair means. By using doctrine of leprosy, they annexed the state of Satara, Jhansi and Nagpur. Now the question arises, what is the doctrine of leprosy? According to this doctrine, if a ruler died without an heir, his adopted son could neither inherit the throne nor any title. सेकेंड पॉइंट देखिए, द ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी annexed the Awadh and made the ruler angry and feel unsafe. Disrespect to Bahadur Shah Zafar by not giving him permission to go to the Red Fort made the Muslim angry. Bahadur Shah was given pension. He and his wife Zeenat Mahal remained in the English protection. British refused to recognize Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao II, as the ruler of the Marathas. Rani of Jhansi also suffered in the same way. British disarmed Indian armies and made the soldiers jobless. These soldiers blamed the English for losing their livelihood. Insults done by the British made the situation bitter. A rumor in India was that after every 100 years, the ruler of India changed. In 1757, the Indians won the Battle of Plassey. It was commonly thought in 1857, after a century, British rule will come to its end. Now, the next topic is consequences of the war. Consequences, result, परिणाम, नतीजा. क्या नतीजा रहा इस युद्ध का? It did not succeeded in achieving its aim, but it had its far-reaching impact. Some of them are: end of the company's rule. East India Company rule came to its end because of the revolt in 1857. Government of India Act was passed by British Parliament. Queen Victoria and the British Parliament were assigned to govern India. This act abolished the board of directors of the company.
The Governor General was made the Viceroy, that is, the representative of the British sovereign in India. Queen Victoria's proclamation, announcement, घोषणा करना. Queen Victoria ने क्या घोषणा की? Lord Canning proclaimed the message of Queen Victoria on 1st November 1858 in a grand darbar at Allahabad, that the company would not rule India any longer. Though this, Indian princes and kings were made loyal to the British. They were allowed to adopt sons and successors. Indians were allowed for all public offices. The proclamation promised for an all-round development of India. In religious freedom guaranteed to the people of India, they were assured for the high post if they were qualified. Army was reorganized. Weapons were placed under the charge of the Europeans. To check nationalism, Indian soldiers were all mixed up. Community, caste, regional loyalties were discouraged. Peshwaship and Mughal rule came to an end. Title of the Mughal emperor was also abolished, मिटा दिया गया after the death of Bahadur Shah II in 1862. Economic exploitation. India became a center of raw material for the British manufacturers. The British misused their political power for their economic interest. The British followed the policy of divide and rule. Divide, फूट डालो. रूल, नीति करो. आपस में लड़ाई झगड़ा कराओ और देश पर शासन करो. The British followed the policy of divide and rule. They favored sometimes Hindus and next time the Muslim. This policy ultimately encouraged the position of India in 1947. Although the War of 1857 could not succeed, yet it aroused the feeling of nationalism and paved the way for the rise of national movement. Sacrifice of the leaders served as a source of inspiration and a symbol of challenge. Now answer the following questions. Name two Indian reformers who strongly advocated social reforms. दो ऐसे रिफॉर्म्स माने समाज सुधारकों के नाम बताओ जिन्होंने समाज को सुधारने के काम किए. यस, फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय एंड सेकेंड दया राम सरस्वती. नेम द सोल्जर हु रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज इन द एनफील्ड राइफल. हाउ वॉज ही पनिश्ड. उस सिपाही का नाम बताओ जिसने कार्ट्रिज बंदूक की गोली, जो एनफील्ड राइफल की बंदूक की गोली थी, उसे यूज करने से मना किया था. यस, मंगल पांडे. हाउ वॉज ही पनिश्ड. उसे कैसे सजा दी गई. ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857. Name 3 states annexed by the British using the doctrine of Lapsi. 3 states: Satara, Jhansi and Nagpur. Now the next question is, what was the doctrine of Lapsi? Doctrine of Lapsi क्या है? If a ruler died without a heir, his adopted son could neither inherit the throne nor the title, and his estate was to be annexed to the British Empire in India. अगर कोई शासक बिना उत्तराधिकारी के डाइड मर जाता है तो उसका गोद लिया हुआ जो लड़का है वो गद्दी का हकदार नहीं होगा, ना ही उसे कोई उपाधि मिलेगी और उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हो जाएगा. नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम, हु यूज्ड दिस डॉक्ट्राइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया.
Lord Dalhousie. Lord Dalhousie used this doctrine for the first time in India. Hope you understand the chapter well. Thank you.